जय मसीह की। आप सबको इस रविवार की आराधना में हम आह्वान करते हैं। हम प्रार्थना करके आराधना शुरू करेंगे। Lord Jesus, thank you for the time and opportunity you have given us to worship your holy name, Master. Lord, as you are singing praises, Lord, let your presence and let your glory come down and fill this place, Master. Lord, touch and heal each one of us, Master. Lord, let this time be a blessing to every one of us, Lord, whoever is watching us on live. And Lord, let this service be a blessing to them and to this nation. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहान में तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. Lord, you're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me.
and runs deep. Your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Teach my song to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Teach my soul to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. मैं चलूं साए मौत की तराई में से,
तेरे सिद्ध प्रेम मेरे डर को दूर करे। जब भी मैं फंसूं इस जीवन की संघर्षों में, मैं पलटूं ना तू पास है जो मेरे। चाहे मैं चलूं साए मौत की तराई में से, तेरे सिद्ध प्रेम मेरे डर को दूर करे। जब भी मैं फंसूं इस जीवन के संघर्षों में, मैं पलटूं ना तू पास है जो मेरे। दुष्टता से डरूं ना, पास है जो मेरे खुदा, पास है जो मेरे खुदा। किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार। तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े। आएगा प्रकाश उनके लिए जो है तामे तुझको, तेजस्वी सब तुलना से पार। सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक हम जाने तुझे इस धरती पर। आएगा प्रकाश उनके लिए जो है तामे तुझको, तेजस्वी सब तुलना से पार। सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक हम जाने तुझे इस धरती पर। दुष्टता से डरूं ना, पास है जो मेरे खुदा, पास है जो मेरे खुदा। किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार। तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार। तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े। आएगा प्रकाश उनके लिए जो है तामे तुझको, सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक। स्तुति मैं गाऊं, स्तुति मैं गाऊं। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार। तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार। तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े। तू कभी न छोड़े मुझको
मुझको शांति देता, और संकट में भी तू कभी न छोड़े मुझको, हर चेहरा और हर उतार तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े, तू कभी न छोड़े मुझको, शांत देता और संकट में भी तू कभी न छोड़े मुझको, हर चेहरा और हर उतार तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको। You're so good, God, you're so good, God, you're so good, you're so good to me. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly, my soul undeserving. God, you're so good, God, you're so good, God, you're so good, you're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour, the dead are raised, the sinners saved, the work of your power. Behold the cross, age to age, and hour by hour, the dead are raised, the sinners saved, the work of your power. God, you're so good, God, you're so good, oh God, you're so good, you're so good to me.
I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, and filled with your power, for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, and filled with your power, for the glory of Jesus' name. And should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. And should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. God, you're so good, yes, Lord. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me, Yeshua. God, you're so good, Jesus. God, you're so good, Father. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me.
मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको आजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको आजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको आजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको आजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया।
प्रभु का प्रिय संत, आप सबको मैं इस रविवार की आराधना सभा में आह्वान करता हूं। आज का संदेश बाइबल में नामों से कुछ रहस्यों, सम मिस्टरीज फ्रॉम द नेम्स इन द बाइबल। कई बार जब हम बाइबल पढ़ता है, उस समय कोई नामों का सूची आ गया तो हम उसको छोड़ देता है, नहीं तो केवल नाम के रूप में ही पढ़ते हैं। लेकिन नामों की अर्थ दिखाने के लिए हम कोशिश नहीं करता है। लेकिन आज आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं, नामों का अर्थ हमें बहुत सी जानकारी देती है और हमें परमेश्वर का चरित्र और स्वभाव के बारे में कई सबक सिखाते हैं। We learn many lessons about the nature of God, about the character of God. जब हम ये जानता है, परमेश्वर पर हमारा निर्भरता बढ़ाने में वो मदद करेगा और परमेश्वर के बारे में और गहरा स्तर में जानने के लिए सहायता करेगा और परमेश्वर के ऊपर और ज़्यादा भरोसा करने के लिए ये सब हमको मदद करता है। इसलिए बाइबल में एक शब्द भी एक बेकार रूप में नहीं लिखा हुआ है। एवरीथिंग हैज ए मीनिंग, एवरी वर्ड हैज ए डीप मीनिंग। हर एक शब्द, हर एक अक्षर जो लिखा है, उसमें एक गहरा स्थायी का अर्थ होता है। सो ये सब ध्यान करने के लिए, अध्ययन करने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको आज ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। कुछ व्यक्तियों का नामों का अर्थ और उसका रहस्य, कुछ रहस्य उसमें मैं सिखाना चाहता हूँ। यहूदी संस्कृति में नाम का बहुत महत्व होता है, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जूइश पीपल, राइट। यहूदी लोग जब अपने बच्चों को नाम देता है, उनके जीवन में जो परिस्थितियां होता है उसके आधार पर नाम देता है। और कई बार बाइबल में हम क्या देखता है ना, परमेश्वर बहुत तकनीकी रूप में वो नामों को उपयोग करता है। वेरी टेक्निकली ही यूजेस द नेम्स, राइट। और उसमें से हमको प्रभु कुछ रहस्य भी सिखाना चाहता है, राइट। सो जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो प्रभु ने ये मेरे ध्यान में लेके आया है, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूं, राइट। हमको पता है परमेश्वर एक क्रम का परमेश्वर है। गॉड इज ए गॉड ऑफ ऑर्डर, राइट। सो हम क्या देखता है ना, पवित्र आत्मा ने जब ये वचन लिखवाया है, राइट, उसको एक क्रम में लिखवाया है और वो क्रम हम देखेगा तो, उसका हम अध्ययन करें तो हमारा दिमाग उड़ जाता है। इट विल ब्लो आवर माइंड, राइट। वो हमको कई सबक, मेनी लेसन्स इट विल टीच अस, राइट। मैं आज आपको याकूब की पुत्रों का नाम दिखाऊंगा, राइट। हमको याकूब का जो बैकग्राउंड है हमको पता है, याकूब का हिस्ट्री हमको पता है, याकूब की कहानी हमको पता है। याकूब ने क्या किया, अपना पत्नी लिवा को नजरअंदाज किया, उसको प्यार नहीं दिखाया, राइट। और ये जो याकूब ने किया है वो बहुत गंभीर गलती है। इट इज नॉट गुड, इट इज ए ग्रेव मिस्टेक। लेकिन हम परमेश्वर लिवा की मदद करने देखता है। हम लिवा का प्रार्थना सुनकर, ठीक है, राहेल के बजाय पहले लिवा का गर्भ परमेश्वर खोलता है। उधर से मैं आज का अध्ययन शुरू करूंगा। उत्पत्ति 29:31। जब यहोवा ने देखा कि लिवा अप्रिय हुई, तब उसने उसकी
कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। राइट। इधर जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है, कलर में हाईलाइट किया है, वो ध्यान से देखना। जब यहोवा ने देखा, कौन देखता है? जब आप दुख में है, जब आपका परिवार के लोगों को अप्रिय है, आपके रिश्तेदारों को अप्रिय है, आपकी ऑफिस में आपका बॉस को अप्रिय है, राइट, आपके फ्रेंड्स को आप अप्रिय है, ये हमको दुख देता है ना, तब एक विषय हम ध्यान रखना, जब हम परमेश्वर पर भरोसा करता है, परमेश्वर जरूर देखता है। तो इधर लिवा अप्रिय हुई है याकूब को, राइट, इसलिए परमेश्वर बीच में आ गया। सो व्हेन हिज पीपल आर डिप्राइव्ड, व्हेन हिज पीपल आर थ्रोन डाउन, गॉड विल कम टू रेस्क्यू। जब परमेश्वर अपना लोग नीचे हुए जाना देखता है, जरूर बीच में आ जाएगा और अपना हाथ से महान चमत्कार करेगा, राइट। सो परमेश्वर ने क्या किया? लिवा का कोख मतलब गर्भ खोल दिया। लेकिन उस समय राहेल के विषय में क्या लिखा है? वो बांझ है। राहेल इज बैरन, रेचल इज बैरन, राइट। मतलब इधर हम परिवार के लिए परमेश्वर का चिंता हम देख सकता है। वी कैन सी द हार्ट ऑफ गॉड, द माइंड ऑफ गॉड, द थॉट्स ऑफ गॉड फॉर फैमिलीज। सो परिवार के लिए परमेश्वर हमेशा चिंता करता है, ये हम देखता है, राइट। इस विषय में हम देखेगा तो हर एक परिवार के विषय में भी प्रभु उतना ध्यान करता है, ये हम ध्यान रखना। सो आपका परिवार को भी, आप छोटा परिवार होने दो, आपको भी प्रभु देखता है। परमेश्वर हमेशा परिवार का निर्माण करना चाहता है। गॉड ऑलवेज वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट, रीबिल्ड द फैमिलीज, क्योंकि आजकल दुनिया में परिवार बहुत कुचल गया है, बहुत टूटा हुआ है। मैं कई लोगों को जानता हूं, देखने के लिए परिवार जैसा है लेकिन टूटा हुआ है, कोई खुश नहीं है, दुख से जीवन बिताता है। ऐसा बहुत सारे परिवारों को देखा है मैंने। मतलब शैतान ने क्या किया? ये परिवार के सिस्टम जो है उसको फाड़ दिया है। इसलिए हम परमेश्वर का मन हमको पता हो गया तो हम सब चीज, हमारा परिवार को हम निर्माण करने में प्रभु का मदद हम ले सकता है। परमेश्वर ने क्या किया? लिवा के माध्यम से याकूब को बच्चे देने के लिए सोचा है और लिवा का गर्भ खोल दिया है। ऐसा क्यों किया होगा? मे भी परमेश्वर ऐसा सोचा होगा कि कम से कम बच्चों को देखकर याकूब को लिवा के ऊपर प्यार आ जाएगा। लेकिन याकूब ऐसा नहीं बदला। बच्चों पैदा होने के बाद भी याकूब नहीं बदला है, ये हम देखता है, राइट। वो केवल क्या किया ना, याकूब ने केवल लिवा के साथ एक संबंध बना रखा है लेकिन प्यार नहीं किया है। इसलिए प्रभु आज सब पतियों को एक, क्या बोलना है, एक आज्ञा, राइट, देता है। पतियों को पहले अपने पत्नियों से प्यार करने का जरूरत है, केवल शारीरिक संबंध बनाने के लिए नहीं पत्नी, राइट। ये प्रभु सब हम सब पुरुषों हैं, हमसे बात कर रहा है। जो पुरुष है प्रभु उनसे बात कर रहा है, जो पतियां हैं उनसे प्रभु बात कर रहा है। याकूब इस विषय में असफल हो गया, राइट, ये हम देखता है। लेकिन जो छोड़ा गया है
उसके साथ परमेश्वर है। When we neglect, God will come on behalf of them. जब हम नजरअंदाज करता है, परमेश्वर उसके खिलाफ आ जाएगा। राइट, ओके, अभी हम आगे पढ़ेंगे उत्पत्ति में 29:32। सो लीवा गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा। जब नाम रखता है, राइट, अपना परिस्थितियों के अनुसार देखकर नाम देता है। यही मैंने बताया था शुरुआत में। सो अभी रूबेन का नाम क्यों रखा है लीवा ने? राइट, रीजन क्या है ना, कारण क्या है कि यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है। यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है। रूबेन का अर्थ, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है और अब मेरे पति मुझसे प्रीति रखेगा। माई हस्बैंड शैल लव मी। देखो, इसका मन कितना कुचला हुआ है कि पति का प्यार ना मिलने के कारण माई हस्बैंड विल लव मी। तो रूबेन का अर्थ, यहोवा ने देख लिया है, यहोवा ने दृष्टि किया है। अभी आप लीवा जैसा आपका जीवन है। अभी प्रभु आपको एक वादा दिखाता है, एक भरोसा दिखाता है। क्या है? रूबेन। रूबेन का अभिषेक क्या है ना, यहोवा आपका दृष्टि को आपका दुख को दृष्टि किया है और आपका पति आपसे प्रीति रखेगा। योर हस्बैंड शैल लव यू। वाओ, वी कैन टेक इट एज अ प्रॉमिस। ये हम एक वादा जैसा हम ले सकता है। प्रभु जब लीवा ने प्रार्थना किया, आपने रूबेन को दिया है। राइट, सो रूबेन का अर्थ ये है। सो आपका जीवन में आप कोई भी दुख में होने दो, वो भाजपन होने दो, वो परिवार की शांति होने दो, वो स्वास्थ्य होने दो, और कोई प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम होने दो, कुछ भी होने दो, किस विषय में आपको दुख है, आपको बच्चों के विषय में आपको दुख है तो, आपको पति के विषय में आपको दुख है तो, आपके रिश्तेदारों की वजह से, आपके सास से ससुर के वजह से आपको दुख है तो, आपके बहू की वजह से आपको दुख है तो, आपके बेटा बेटियों के वजह से आपको दुख है तो, वो दुख प्रभु आज देख रहा है। तो हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा दुख देखने वाला है, हमारा दुख पर दृष्टि करने वाला है। दिस इज अवर गॉड। राइट, ऐसा नहीं कि आप रोता रहो मैं देखता रहूंगा, नहीं। जब प्रभु दृष्टि की है, क्या हुआ? लीवा को एक समाधान मिल गया। जब प्रभु ने दृष्टि की, उसका समस्या के लिए एक हल खुल गया। उसका समस्या क्या है? पति का प्यार नहीं, सो बच्चों आ गया तो प्यार मिल जाएगा बच्चों के वजह से। राइट, सो आज आपको प्रभु ये वादा देता है, मैं आपका दुखों को देख रहा हूं और आपके लिए एक समाधान मेरे पास है, वो यही है बोल के आज प्रभु आपको दे रहा है। श्योरली। राइट, सो ये रूबेन पहला संतान के विषय में। फिर वह गर्भवती ही, मतलब 33 वर्ष, अभी उत्पत्ति में 29:33। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने यह कहा कि यह सुन के कि मैं अप्रिय हूं, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। देखो, रूबेन पैदा हो गया, मतलब 1 साल गुजर गया, है ना। कोई भी गर्भ में, राइट, 10 months, सो 1 year अप्रोक्सीमेटली गैप। सो ये 1 साल में
याकूब बदला नहीं, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, दोबारा मे भी 1 साल के बाद खोला या 2 साल के बाद खोला, फिर से प्रभु ने लिवा का गर्भ खोला है। सी 2 years, लेट अस मिनिमम टाइम समझो। जब याकूब नहीं बदला है, परमेश्वर राहेल को वैसा ही छोड़ा है, राइट, लेकिन लिवा का गर्भ और एक बार खोला है। इसलिए इधर क्या लिखता है, हम याकूब बदला नहीं बोल के कैसा पता चलेगा? इधर लिवा क्या बोलता है, इधर यह सुन के कि मैं अप्रिय हूं, मतलब अभी भी मैं अप्रिय हूं। अरे एक बेटा पैदा होने के बाद भी मैं अप्रिय हूं मेरे पति को। सो समटाइम्स द सिचुएशंस विल नॉट चेंज। कई बार हमको एक समस्या को हल मिल गया तो भी दूसरा समस्या हो सकता है, या हमारा समस्या पूरी तरफ से उसके लिए समाधान नहीं हो सकता। फिर भी चिंता मत करना। अरे ये क्या है, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कई बार लोग ऐसा ही सोचता है, मैं भी कई बार ऐसा ही सोचा, मेरे बारे में यही क्यों होता है, राइट। लेकिन परमेश्वर इधर बता रहा है, अभी कुछ समाधान मिल गया, उसके वजह से आपका समस्या पूरा नहीं निकला है, चिंता मत करो। एक और मैं आपको योजना, एक और समाधान मैं भेज रहा हूं, दैट इज शमौन्स अनॉइंटिंग, राइट। सो शमौन का अभिषेक क्या है? फिर से दोबारा परमेश्वर ने लिवा के लिए रास्ता बना रहा है। लिवा को पति का प्यार चाहिए, उसके लिए प्रभु रास्ता बना रहा है। तो फर्स्ट रूबेन, उसके बाद शमौन, ठीक है। ऐसा आपका जीवन में भी प्रभु एक एक समाधान लेके आ जाएगा। फाइनली आपका पूरा समस्या निकल जाएगा। ये ध्यान रखना, धीरे धीरे एक एक जवाब प्रभु आपको भेजेगा, जरूर भेजेगा, राइट। अभी 34, उत्पत्ति में 29:34। फिर वह गर्भवती हुई, अभी 3rd टाइम, मतलब 3 साल गुजर गया होगा, राइट। फिर भी उनको पति से प्यार नहीं मिला। देखो, कई बार कुछ कुछ होता है, ठीक है, बच्चों तो मिल रहा है, बच्चों में एक तोहफा है, चिल्ड्रन आर गिफ्ट, ठीक है, राइट, उससे कुछ आनंद आता है, राइट, गुड। बट कोई असली समस्या जो है वो नहीं निकलता है। मतलब आपका जीवन में भी आपका सिर का दर्द निकल जाएगा, आपका बुखार निकल जाएगा, आपका जुकाम निकल जाएगा, लेकिन आपका असली समस्या जो है वो निकलने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। फिर भी चिंता मत करना, राइट। लिवा को भी कुछ कुछ समाधान मिल रहा है, लेकिन उसका असली समस्या जो है उसके लिए समाधान नहीं मिल रहा है। इसलिए अभी क्या बता रहा है? उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा। अरे दिस टाइम श्योरली माय हस्बैंड विल कम टू मी। वाह, मतलब पति के लिए कितना तड़पता है, कितना चिंता करता है, वो हमको इधर दिख रहा है। क्योंकि उसने मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उसका नाम लेवी। सो लेवी का अर्थ क्या है? अभी मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, माय हस्बैंड शैल जॉइन विथ मी, राइट। सो आपके लिए, राइट, जो कुछ आप इंतजार कर रहा है वो आके जोड़ लेगा आपको, राइट। सो प्रभु आपको सहायता करेगा। किस विषय में आप चिंता कर रहा है उसका समाधान आकर आपसे जोड़ जाएगा, राइट। ये तीसरा संतान है। अभी 35, उत्पत्ति 29:35। और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, मतलब मे बी अभी 6 साल हो गया होगा, क्योंकि एक संतान के बीच में 1 साल का गैप है, या पता नहीं हमको। अभी 4था संतान हो रहा है। उस समय स्टिल राहेल इज बैरन। उस समय
मतलब ये इतना सालों में भी राहेल बांझ में है, राइट। सो फिर वह गर्भवती हुई और उसको एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। नाउ आई शैल प्रेज माय गॉड। यहूदा, यहूदा बोलेगा तो यहोवा का स्तुति करूंगा, यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहूदा का नाम का अर्थ देखो, इसलिए मैंने हर एक वचन में नाम ब्लू कलर में हाईलाइट किया है, उसका अर्थ रेड और येलो कलर में मैं हाईलाइट किया है, राइट। सो इसलिए आप भी जब आप बाइबल पढ़ता है आप ऐसा नोट करना है। अभी आप जब नोट्स लेता है आप ऐसा नोट करना है। मतलब जब समस्या नहीं जा रहा है, राइट, तब एक ही आपके लिए समाधान है, एक ही आपके रास्ता है। क्या है ना, यहोवा का स्तुति करो। दिस इज वन सीक्रेट। व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, जब स्थितियां सही नहीं हो रहा है, वन सीक्रेट इज टू कीप ऑन प्रेजिंग योर गॉड। प्रभु का स्तुति करता रहो, क्योंकि परमेश्वर हमारा स्तुति के ऊपर सिंहासन पे बैठता है, हमारा स्तुति के सिंहासन पर बैठता है। सो आप स्तुति करना शुरू करो। स्टार्ट प्रेजिंग गॉड, राइट। दिस इज वन मोर सीक्रेट। जब आप कभी भी कुछ भी हल नहीं मिल रहा है, राइट, उस स्थिति के लिए आप धन्यवाद बोलना, उस स्थिति के लिए आप स्तुति करना। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, ये स्थिति मेरे जीवन में ऐसा ही है इसलिए मैं धन्यवाद बोलता हूं। ये स्थिति मेरे जीवन में वैसा ही है इसलिए मैं धन्यवाद बोलता हूं। ऐसा बोलेगा तो उसको आपको एक समाधान मिल जाएगा, राइट। सो यहूदा चौथा, तब उसके कोख बंद हो गए। सो मतलब 4 पुत्र होने के बाद फिर पुत्र नहीं हुआ लिवा को, राइट। उस समय एक बात हो गया, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उत्पत्ति में 30 अध्याय में 1 वचन देखिए। उत्पत्ति में 30 अध्याय 1 वचन। अभी जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होता, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। नाउ देखो, राहेल अपनी बहन को देखता है, अरे इसको 1 2 3 4, वाह 4 संतान हो गया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सो इसलिए क्या होना, अरे मेरे अंदर गलती क्या है, किधर मैं गलत कर रहा हूं बोल के सोचना है ना। वो कभी भी अपना पति को, अरे लिवा भी आपका पत्नी है, ठीक है मेरा पापा ने गलत किया है, जब मुझे देना था आपको लिवा को दे दिया, वो लिवा का गलती नहीं है। आप सिर्फ आपका प्यार मेरे ऊपर, मेरे ओर ही दिखाता है, लिवा को भी आप प्यार दिखाना है बोल के वो ऐसा अच्छे रूप में व्यवहार किया तो पहले राहेल को ही संतान होता था, लेकिन राहेल ऐसा नहीं किया और अभी उसके ऊपर जलन करना भी शुरू कर दिया। ना उसने अपना पति को सही बात बोलने के लिए नहीं कोशिश किया है ना, नहीं कोशिश किया उसने, और ना उसका पति को उसके पास सही रूप में प्रेम रखने के लिए उसको नहीं बताया। तो इसलिए पति पत्नियां ध्यान रखना, यू नीड टू टेल योर वाइफ, यू नीड टू टेल योर हस्बैंड, यू नीड टू टेल योर चिल्ड्रन these सीक्रेट्स, क्योंकि परमेश्वर सबसे मुख्य परिवार को प्रभु प्राथमिकता देता है। ठीक है, इसमें लिवा का गलती नहीं है, ना राहेल का गलती, राहेल को भी पता नहीं कि उनका पापा वैसा करेगा बोल के, लेकिन जब उसका पापा ने गलत रूप में व्यवहार करके लिवा को दे दिया उसको छोड़कर, तब वो क्या करना था,
अरे देखो मेरा बहन का जीवन ऐसा हो गया, ठीक है मैं थोड़ा उसको मदद करूंगा। ऐसा नहीं किया। आप भी वैसा स्थिति में हैं? देखो हम अपने आप को सही करना है। सो इसलिए बाइबल में कुछ चीज आशीर्वाद के लिए लेना है, कुछ चीज हमारा स्वभाव को सही करने के लिए भी हम सीखना है। सो राहेल का जीवन देखकर हम ये सीखना है कि ऐसा स्थिति में हम कैसा व्यवहार करना, राइट। और जलन ऊपर 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 क्या हो गया, जलन करने लगा, है ना। जलन बहुत बड़ा क्या बोलना है, हथियार जैसा है शत्रु का हाथ में। बहुत सारा फैमिलीज में मैं देखता हूं जलन के कारण वो लोग कुचला गया है। बिकॉज ऑफ जेलसी दे वर ट्रॉडन डाउन, दे वर टॉर्न डाउन, वो फाड़ दिया गया है परिवारों। इधर लिवा का साथ भी वही हुआ है, वो और ज्यादा जलन किया। जलन करके क्या कर रहा है, पति से लड़ाई करता है। दूसरा तीसरा मिस्टेक, पहला मिस्टेक क्या है राहेल का, पति को समझाया नहीं। नंबर 2, बहन को मदद नहीं किया। नंबर 3, जलन करना शुरू कर दिया। नंबर 4, पति से लड़ाई करना शुरू कर दिया। सब व्यवहार जो हम देखता है, गलत व्यवहार कर रहा है राहेल। इससे फायदा हुआ नहीं हुआ। और 5वां मिस्टेक, 5th मिस्टेक, मैं मर जाऊंगा, अब संतान दे दो। नेगेटिव बात बोलता है, आई विल डाई। मे भी ऐसा कहने के वजह से वो जल्दी मर गया है। राहेल डाइड अर्ली, वो बाद में हम देखेंगे, राइट। सी द मिस्टेक्स, वी नीड टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द पीपल। हम लोगों का जो गलती है, इसलिए बाइबल सब कुछ साफ लिखता है, गलत को गलत लिखता है, सही को सही लिखता है। सही चीज को लेना है, गलत चीज को हम लेकर क्या करना, हम अपने आप को सही करना है। हम वैसा ही जीवन में है तो हम दोनों में करना है, राइट। जो सही काम है वो करना, जो गलत काम है उससे हम अपने आप को सही करना, राइट। राहेल के जीवन से हम ये सीखना है। अभी क्या किया उसने, देखो 6th मिस्टेक। नाउ द 6th मिस्टेक व्हाट शी डिड, 6 मिस्टेक्स ऑफ राहेल अंटिल नाउ। एक खाली 1-2 वचन में 6 गलती इसका दिखा रहा हूं मैं, राइट। 6th मिस्टेक क्या है, हां, उत्पत्ति में 30 अध्याय में 4 और 5 वचन। तो उसने अपने लौड़ी बिल्हा को दिया, दासी बिल्हा को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। शी गेव अनदर वुमन एज वाइफ। ये बहुत गलत है। द 6th मिस्टेक, देखो गुस्सा में क्या करता है ये, लड़ाई में क्या करता है, नकारात्मक बात बोलने में उसका दिमाग बंद हो गया। ये क्या कर रहा है उसको पता। ठीक है, उस समय कल्चर में कैसा है ना, उस समय क्या बोलना है, उस दिनों का कल्चर में दासी को भी एक प्रॉपर्टी जैसा देखता है, उससे कुछ भी कर सकता है, राइट। ऐसा स्थिति था उस समय, ठीक है। सो अपने वो जो कल्चर है, वो कल्चर के अनुसार ये व्यवहार कर रहा है। रीति रिवाज जो होता है उस काल का, उससे उसके अनुसार ये क्या किया, अपने दासी को दे दिया पति को। और बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अभी देखो, ये देखकर भी इसको दिमाग नहीं खुलता है। अरे मेरे दासी को दिया तो इसको संतान हो गया, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, मुझे क्यों मेरा आशीर्वाद नहीं खुलता है। जांचना है,
राहेल नहीं जांचा, राइट। तो अभी बिल्हा को पुत्र उत्पन्न हुआ। तो उस काल में क्या है ना, दासी का संतान पति के द्वारा हुआ तो उसको अपनाता है, गोद में लेता है, राइट। तो ये गोद में लेने के लिए योजना करके दासी को दे दिया। अभी उस पुत्र को क्या नाम दिया, देखो 6 वचन देखेंगे। उत्पत्ति 30 अध्याय में 6 वचन। और राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया। न्याय चुकाया है क्या? राइट। लेकिन वैसा ही बता रहा है। आओ मेरी सुनकर। तो दान का अर्थ क्या है ना, दान वो बेटा का नाम है। तो दान का अर्थ है परमेश्वर न्याय चुकेगा। यस, गॉड विल श्योरली जज। परमेश्वर जरूर न्याय करेगा, परमेश्वर जरूर सुनेगा। गॉड विल श्योरली हियर योर प्रेयर्स। ये दान का अर्थ है। ठीक है, राहेल का जीवन अलग बात है, लेकिन दान का नाम का अर्थ वो भी हम देखना पड़ेगा। परमेश्वर मेरा न्याय करेगा, परमेश्वर मुझे सुन लेगा बोल के उसका नाम का अर्थ है। ठीक है, बिल्हा को संतान हो गया। उसके बाद 7 वचन, उत्पत्ति 30 में 7। और राहेल की लौड़ी मतलब दासी बिल्हा फिर एक बार गर्भवती हुई। में भी 1 साल के बाद फिर से वो गर्भवती हुई और याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। 8वें वचन। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपटकर मल्लयुद्ध किया और अब जीत गई। अरे देखो, ये क्या अंधापन है, क्या अंधापन है राहेल को। सो राहेल का एक तरफ हम राहेल का अंधापन देखता है, दूसरी तरफ उस नाम का अर्थ। सो नफ्ताली शब्द का अर्थ क्या है ना, मैं मल्ल युद्ध में जीत गया है। इन माई रेसलिंग आई हैव प्रिवेल्ड। मेरा मल्ल युद्ध में मैं जीत गया है। तो आपका मल्ल युद्ध में भी आप जीत जाएगा। ठीक है, राहेल का व्यवहार छोड़ दो, लेकिन इस शब्द का अर्थ लेंगे हम। तो परमेश्वर आपका जीवन में क्या कर सकता है। आपका कोई भी मल्ल युद्ध है अभी जो आप सामना कर रहा है, किस विषय में आप सामना कर रहा है, उसमें आपको जीत मिल जाएगा। दैट इज अ नेम, मीनिंग ऑफ द नेम। ठीक है, सो इधर हम व्यक्तियों का व्यवहार अलग से देखना, नाम का अर्थ अलग से देखना, दोनों को मिक्स मत करना। इसका मतलब यह नहीं कि राहेल जीत गया। राहेल गलत में है, गलत स्थिति में है, उसको गलत को गलत के रूप में ही देखना है और इस नाम का अर्थ अर्थ का रूप में ही देखना है। दोनों को मत जोड़ना, ये ध्यान रखना, राइट। सो नफ्ताली का अर्थ है मल्ल युद्ध में जीत गया। बोलेगा तो राहेल सही किया, राहेल ने मल्ल युद्ध में जीत गया। नहीं, ये वो ऐसा सोचता है मैं जीत गया बोल के, लेकिन वो हार गया है। लेकिन वास्तव में नफ्ताली का अर्थ मल्ल युद्ध में आप जीत जाएगा। सो आप नफ्ताली का अर्थ आप कैसा लेना है, मेरा मल्ल युद्ध में मैं जरूर जीत लूंगा क्योंकि मैं मेरे परमेश्वर के साथ मैं चल रहा हूं, मेरे परमेश्वर से मुझे जीत मिल जाएगा बोल के आप आगे जाना है। लेकिन राहेल को देखकर वो कैसा गलत रूप में व्यवहार कर रहा है, उसमें से हम हट जाना है। तो बैलेंस करना है। ठीक है, सो इधर ये नाम का अर्थ देखकर राहेल को हम सपोर्ट नहीं कर रहा है, राहेल का गलती को गलती का रूप में ही बता रहा हूं, लेकिन शब्द का अर्थ जो है वो मैं अलग से बता रहा हूं। सो दोनों हम लेना, राइट। सब चीज अभी जो कुछ मैं बताया है सब में ऐसा ही लेना है। गलती को गलती का रूप में ही देखो, गलत को गलत का रूप में ही देखो, सही को सही का रूप में ही देखो, अर्ध को अर्ध का रूप में देखो। ये सब हम किधर किधर से क्या क्या लेना है वो लेना है, राइट। ओके, सो नफ्ताली। उसके बाद क्या हो गया 9 वचन देखिए, उत्पत्ति 30 में 9।
जब लिवा ने देखा कि मैं जनने से रहित हो गई हूं, तब उसने अपनी लौड़ी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया है। अभी टेंशन लिवा को हो गया, ये क्या है रे, मुझे 4 मिल गया, उसको 2 मिल गया, अरे देखो कंपटीशन आ रहा है बोल के ये घबराहट होकर लिवा भी ये गलत किया। ठीक है, उस कल्चर में वो सही हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के नजर में तो वो सही नहीं है। फिर भी प्रभु लिवा को माफ किया, कैसा? राहेल को माफ किया है। प्रभु सबको क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु बहुत दयावान परमेश्वर है, वो किसी को भी दंड नहीं देना चाहता। ओके ठीक है, ये कुछ गलत किया है, अभी ये मन फिर के आ गया तो मैं क्षमा करूंगा बोल के प्रभु देखता रहता है। सो लिवा भी क्या किया? अपनी बहन को देखकर वो ही गलत किया। सो आप भी किसी को देखकर वो गलत आप मत करना। नेवर बी मेस्मराइज्ड बाय द अदर पीपल। वो कर रहा है और वो उसको कुछ भी नहीं हो रहा है तो मैं भी करके देखूंगा, नहीं, आप अलग है। राइट, ये हम देखना पड़ेगा, जरूर जरूर ये ध्यान करना पड़ेगा। लोगों को देखकर हम कुछ कुछ काम नहीं करना। लिवा राहेल को देखकर वो भी वैसा ही व्यवहार किया। कई बार हम भी लोगों को देखकर, हमारा पड़ोसी को देखकर, हमारा फ्रेंड्स को देखकर उसके अनुसार हम भी व्यवहार करते हैं, वो गलत है। प्रभु के अनुसार हम व्यवहार करना, राइट, वचन के अनुसार हम व्यवहार करना, राइट। ओके, नाउ सो लिवा भी वही गलत काम किया है, फिर भी प्रभु दया करता है, राइट। सो देखो उत्पत्ति 30 अध्याय में 10 वचन, 10 और 11, और लिवा की लौड़ी मतलब दासी जिल्पा को भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिवा ने कहा, अहो भाग्य। सो उसने उसका नाम गाद रखा। अहो भाग्य, इंग्लिश में देखेगा तो अलग शब्द उपयोग किया है इंग्लिश में, ए ट्रूप कमित, मतलब एक दल आती है, इसलिए मैंने हिंदी में लिखे रखा है ब्रैकेट में, एक दल आती है। गाद का मतलब एक दल आती है। सो लिवा ने यह सोचा है कि मेरा संतान बढ़ रहा है, मेरा नंबर्स बढ़ रहा है, क्योंकि 4 अभी इसको है, राइट, और उनका दासी के द्वारा एक और आ गया, मतलब उसका आर्मी 5 हो गया उसका सेना 5 हो गया, राहेल का सेना 2 है। तो मेरा सेना बढ़ रहा है, मेरा दल बढ़ रहा है बोल के ये खुश हो रहा है, इसलिए उसको मैं खुश हूं, मैं ये मेरे भाग्य क्या है, मेरा दल बढ़ रहा है। देखो पतियां, ध्यान रखना, जब आपका पत्नी से सही व्यवहार नहीं किया तो पत्नियां क्या करेगा, अपना बच्चों में अपना दल बनाएगा द चिल्ड्रन विल बिकम एन आर्मी, राइट। तो याकूब के जीवन में देखो क्या हो गया है, एक दल आ गया, मतलब मेरा 5 हो गया, अभी इसका 4, मेरा 4 और इसका 1, 5 हो गया, मेरा दल बड़ा दल हो रहा है, राइट। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, 12 वचन, 12-13। फिर लिवा की लौड़ी जिल्पा को याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, 1 मोर। तब लिवा ने कहा, मैं धन्य हूं, मैं खुश हूं, निश्चित स्त्रियों मुझे धन्य कहेगी, और उसका नाम आशेर रखा। तो आशेर का अर्थ क्या है, पीपल विल कॉल मी ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, राइट। सो अभी तक इतना साल, राइट, सो 4 लिवा को, 2 बिल्हा को, 2
झिल्पा को, ठीक है, 9 हो गया, फिर भी राहेल को संतान नहीं मिला। राहेल अपना समस्या के विषय में सही रूप में व्यवहार नहीं किया, इसलिए देखो कितना देरी हो गया इसको। जो ये मांगता है वो बहुत देरी हो गया है। राइट। अभी और क्या हो गया आगे? 30 में 17 वचन, 17 और 18। तब परमेश्वर ने लिवा की सुनी, जो वह गर्भवती हुई और याकूब से उसके 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिवा ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी लौड़ी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजूरी दी है। सो उसने उसका नाम इस्साकार रखा। देखो कैसा गलत रूप में ये लोग अर्थ लेता है। मैंने मेरे पति को किसको दिया? मेरे दासी को दिया, इसलिए परमेश्वर मेरे ऊपर दया है। ये गलत है। देखो गलत तरीका में अपना समझ के अनुसार मत लेना, लेकिन प्रभु तो सबको माफ किया है, वो अलग बात है। प्रभु ने क्षमा किया है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा समझना गलत है। तो लिवा का ये समझ जो है, हाँ मैंने मेरे पति को मैंने मेरे दासी को दिया है, इसलिए परमेश्वर मुझे एक बड़ा मजूरी दिया है। गॉड गिव मी ए ग्रेट हायर, ओके, ग्रेट रिवॉर्ड मुझे दिया है, भेंट दिया है, बोल के इस्साकार का नाम रखा है। ठीक है, नाम का अर्थ तो सही है, लेकिन वो समझ जो है लिवा का वो गलत है। इसलिए देखो जब हम बाइबल पढ़ता है, हर एक समझ ध्यान से देखना है, किसका समझ सही है, किसका समझ गलत है, किसका व्यवहार सही है, किसका व्यवहार गलत है। ये देखकर हम अपने आप को सही करना, ये सीखना है हम। ठीक है। सो इस्साकार का अर्थ है मेरा मजदूरी प्रभु देगा। सो अभी इस्साकार की नाम के वजह से वो अर्थ मैं क्या बता रहा हूं, परमेश्वर आपको आपका मजदूरी देगा। गॉड विल गिव यू योर हायर, गॉड विल गिव यू योर रिवॉर्ड, गॉड विल गिव यू योर कॉम्पेंसेशन। राइट। सो ये उसका अर्थ है। तो देखो कितना अच्छा नाम रखा है, और वो नाम का अर्थ हम लेकर, प्रभु आपने ऐसा किया है लिवा का जीवन में, अभी मेरा जीवन में करो बोलेगा तो प्रभु जरूर करेगा। राइट। लेकिन हम ध्यान रखना, लिवा का गलत हम नहीं करना है, राहेल का गलत हम नहीं करना है। राइट। ओके। अभी 19 वचन। और लिवा फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसको 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिवा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अब की बार मेरा पति मेरा संग बना रहेगा। हाँ, अब की बार, अभी 6वां पुत्र आ गया है, इसलिए अभी मेरा पति मेरा संग रहेगा बोल के ये बता रहा है। इसलिए उसका नाम जबूलून रखा है। जबूलून मतलब परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है। जबूलून मतलब मेरा पति मेरा संग बना रहेगा। वाह, अर्थ तो बहुत बढ़िया है। तो हम ये अर्थ लेकर प्रार्थना कर, प्रभु जबूलून का अभिषेक दे दो, आशेर का अभिषेक दे दो, नफ्थली का अभिषेक दे दो, यहूदा का अभिषेक दे दो, दान का अभिषेक दे दो। ऐसा हर एक नाम रखकर हम प्रार्थना करना है। इसलिए आज मैंने आपको ये चीज बता रहा हूं, कहानी भी बता रहा हूं, अर्थ भी बता रहा हूं, और क्या प्रार्थना करना है वो भी मैं बता रहा हूं, और परमेश्वर क्या करेगा वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। आई एम डूइंग सो मेनी थिंग्स राइट नाउ। राइट। जबूलून का अभिषेक के लिए आप प्रार्थना करना है। Whoever is suffering with husbands, कौन कौन पति की वजह से, पत्नी की वजह से आपका जीवन में दिक्कत सामना कर रहा है, वो ये अभिषेक के लिए प्रार्थना करो, सेट हो जाएगा। राइट। जबूलून 10 साल हो गया, 10 संतान, 10 साल हो गया या 20 साल हो गया,
क्योंकि एक एक संतान के बीच में मे बी 1.5 ईयर या 2 ईयर्स का गैप मान लिया तो 20 साल हो गया होगा। अभी राहेल प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जब वो प्रार्थना करना शुरू कर दिया, परमेश्वर ने उसका प्रार्थना भी सुन लिया। अरे देखो, इतना जलन किया राहेल को, कैसा प्रभु क्षमा करेगा। इतना गलत किया, इतना ये किया, तो कैसा प्रभु माफ करेगा। अरे कौन क्षमा मांगेगा, प्रभु उसको क्षमा करेगा। सिंपल। गॉड इज सो ग्रेशियस, गॉड इज सो लविंग फादर। दयावान परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है। कौन उसके पास आएगा, वो कोई भी होने दो। वाओ, सो ब्यूटीफुल इज द हार्ट ऑफ गॉड, सो वंडरफुल इज द नेचर ऑफ गॉड। प्रभु का स्वभाव कितना महान है। राइट। अभी देखिए 22 वचन, 30 अध्याय में 22 वचन, 22 to 24। और परमेश्वर ने राहेल की भी सुधी ली। मतलब जब राहेल प्रार्थना करना शुरू कर दिया, प्रभु सुन लिया है। मैं भी पश्चाताप किया होगा, लॉर्ड आई एम सॉरी। 20 साल के बाद या 15 साल के बाद इसको पश्चाताप आ गया होगा। आई थिंक सो। इसलिए प्रभु क्या किया, और उसकी सुनकर, मतलब उसकी प्रार्थना सुनकर उसकी कोख खोली। So God, the God who opened the womb of Rahel will surely open your womb also. गर्भ भूलेगा तो संतान के लिए नहीं, आप किस चीज के लिए बाजपन में है, आप किस विषय में आपका जीवन में बाजपन है, उस विषय में जरूर आपका अभी जो प्रार्थना आप कर रहा है प्रभु सुन लेगा, और आप उस विषय में गर्भवती हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, आप उस विषय में आपका गर्भ खोलेगा। आप क्या मांगता है प्रभु के सामने, उस विषय में जरूर। आप कोई भी होने दो, आपका बैकग्राउंड कितना भी होने दो, आप कितना भी गलत कर दिया होने दो, एक बार आप प्रभु के पास आया है, बस खत्म। प्रभु क्षमा किया है और आपका समाधान खुल गया है। अभी राहेल बोलता है, सो उसने कहा, परमेश्वर ने मेरे नाम धराई को दूर कर दिया, और उसका नाम यूसुफ रखा, और कि परमेश्वर मुझे एक और पुत्र भी देगा। यूसुफ का अर्थ क्या है, एड वन मोर, एक और पुत्र भी मुझे देगा। ये आशा किया था कि एक और पुत्र भी प्रभु देगा मुझे। प्रभु दया करो, एक और पुत्र भी दे दो बोल के बता रहा है। जोसेफ, एड वन मोर, और नामधराई दूर हो जाएगा। राइट, माय रिप्रोच। सो आज प्रभु आपको बता रहा है, किस विषय में आपका नामधराई है, उसको प्रभु दूर कर दिया है। गॉड इज टेकिंग अवे योर रिप्रोच नाउ। गॉड इज टेकिंग अवे योर रिप्रोच। आपका नामधराई प्रभु दूर कर देता है आज। राइट। और आपको एक और जोड़ देगा, एक और आशीर्वाद जोड़ देगा। वन मोर ब्लेसिंग इज एडेड अनटू यू। राइट। राहेल के विषय में हम ये चीज देखता है। अभी आगे जाएंगे, उत्पत्ति 35 में 16। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया, और एफ्राता थोड़ी ही दूर रह गया कि राहेल के बच्चा जनने के बड़ी पीड़ा आने लगी। अभी हम 3-4 अध्याय के बाद हम देखता है फिर से राहेल गर्भवती हुई है, लेकिन वो जन्म देने में उसको बहुत दिक्कत हो गया है। सो उस दिक्कत में वो मर गया है। 17 वचन देखिए, 35:17। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी, तब धाई से उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरा बेटा ही होगी। ओके, नर्स जो बता रहा है आपको बेटा होगा, चिंता मत करो, डोंट वरी, डोंट वरी। 18 वचन 18।
तब ऐसा हुआ कि वह मर गई। वेरी सैड। राहेल मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसका पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। बेनोनी मतलब दुख का पुत्र। ये दुख का पुत्र हो गया है, इसलिए मैं मर जा रहा हूं बोल के मर गया है। लेकिन उसका पापा ने क्या किया? बिन्यामीन, बिन्यामीन मतलब मेरा दाहिनी हाथ का पुत्र है, सन ऑफ माई राइट हैंड, मेरा बल, ऐसा बताया है। उसका नाम बदल दिया है बिन्यामीन। अभी 12 संतान हो गया, लेकिन अभी देखो क्या हो गया है। लास्ट में राहेल तो मर गया है, राइट। ठीक है, और उसके विषय में और थोड़ा विषय मैं बाद में आपको बताऊंगा। अभी हम एक बार सब चीज ध्यान करेंगे, राइट। पूरा नाम के एक लिस्ट में बना के आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, वो आप स्क्रीनशॉट लेना। यू टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एक एक स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट लेना है, राइट। याकूब का पुत्रों का उनका अर्ध के साथ उसका जन्म के क्रम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द बर्थ ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, राइट। सो पहले कौन है? रूबेन है, द फर्स्ट बॉर्न। रूबेन मतलब देखे या एक पुत्र, वो भी एक अर्थ है। तीसरा अर्थ, परमेश्वर ने मेरा दुख पर दृष्टि की। वन मोर मीनिंग, मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा, रूबेन। शिमोन मतलब सुनवाई, सुनवाई है शिमोन का अर्थ। परमेश्वर ने सुना है, परमेश्वर ने सुना है, शिमोन। लेवी का अर्थ है शामिल हो गए हैं, जुड़ा हुआ है, मेरे पति मुझे मिल जाएगा। देखो कितना कितना अर्थ है। हिब्रू भाषा में हम देखेगा तो बहुत सारा अर्थ आता है। यहूदा मतलब यहोवा का स्तुति हो, यहोवा को मनाओ, सेलिब्रेट युअर गॉड, यहोवा को मनाओ, राइट। सो मैं इंग्लिश में भी देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकता है। सो फर्स्ट स्लाइड हिंदी और इंग्लिश। हिंदी का स्क्रीनशॉट ले लो, और क्योंकि ये आप प्रार्थना करना है, रूबेन का अभिषेक के लिए आप प्रार्थना करना है, शिमौन का अभिषेक के लिए आप प्रार्थना करना है, क्योंकि उस नाम का अर्थ के अनुसार आपको अभिषेक मिलना है, राइट। सो लेवी की अभिषेक के लिए, यहूदा का अभिषेक के लिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। तो रूबोन, सिमियोन, लेवी, यूदा कौन है? यहूदा कौन है? लिवा का संतान है। उसके बाद राहेल की दासी को संतान हुआ है, राइट। नंबर 5 दान। नंबर 5 कौन है? ऑर्डर क्रम में कौन है? दान। ये किसको? बिल्हा को, राइट। दान मतलब परमेश्वर न्याय चुकाएगा। तो किस विषय में आप न्याय के लिए देख रहा है, उस विषय में आपको न्याय आ जाएगा। परमेश्वर सुनेगा आपका प्रार्थना, आपका विनती प्रभु सुनेगा। यह दान का अभिषेक है। नफ्ताली का अभिषेक क्या है ना? मेरे मल्ल युद्ध में मैं जीत जाऊंगा। तो आपका मल्ल युद्ध जो कुछ है उस विषय में आप जीत जाएगा। फॉर वॉट एवर यू आर रेजलिंग यू विल प्रिवेल। इंग्लिश में यू विल प्रिवेल, जरूर। 7 नंबर कौन है? गाद। वो लिवा का दासी का संतान है। गाद और आशेर। गाद मतलब एक दल आती है। सौभाग्य एक और अर्थ है। आक्रमणकारी मतलब हम जीत करके क्या करेगा? आक्रमण करके जाएगा शत्रु का चीज को, राइट। आक्रमण करके जाएगा शत्रु का, अच्छा वालों का नहीं, राइट। हाँ, आशेर का मतलब खुश।
लोग मुझे धन्य कहेगा, आशीष। सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लिया है, राइट। सेकंड स्लाइड, हिंदी और इंग्लिश। सो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लिया है। नाउ थर्ड स्लाइड। अभी लीवा को फिर से 2 संतान हो गया है, 9 नंबर और 10 नंबर याकूब का संतान में, इस्साकार और जबूलून। इस्साकार मतलब परमेश्वर ने मेरे मजूरी या इनाम या वेतन या लाभ या मुआवजी दी है, राइट। जबूलून मतलब परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दहेज दिया है। दहेज मतलब परमेश्वर मेरा पिता बन गया है ना। दहेज कौन देगा? पिता देगा। तो परमेश्वर आपका पिता बन गया है, जबूलून का अभिषेक। मेरा पति मेरा संग बना रहेगा, मुझे एक निवास स्थान मिल जाएगा। जबूलून मतलब निवास स्थान, हैबिटेशन। वाह, बहुत बढ़िया अर्थ है। तो ये पकड़ कर हर हम प्रार्थना करना, राइट। सो इंग्लिश में भी आप देखो और उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। तो ये थर्ड स्लाइड हो गया, थर्ड या फोर्थ। फर्स्ट रूबेन स्लाइड, सेकंड राहेल की दासी, थर्ड, हाँ ये थर्ड हो गया। अभी फोर्थ स्लाइड, राहेल का 2 पुत्रों, यूसुफ। यूसुफ मतलब परमेश्वर ने मेरे नाम धराई को दूर कर दिया, परमेश्वर मुझे एक और भी देगा, हाँ एक और आशीर्वाद जोड़ लेगा। तो वास्तव में यूसुफ का 2 पुत्रों बाद में जुड़ा हुआ है जनजातियों में, ठीक है। इसलिए एड ऑन, सबको एक एक नंबर मिल गया जनजाति में, यूसुफ को 2 नंबर्स मिल गया एक मनश्शे, एक एफ्राइम। ये भी मैंने बताया था आपको काफी दिन पहले, आई टोल्ड यू दिस, डबल, राइट। मनश्शे मतलब भूलने के कारण, मतलब परमेश्वर आपको भूलने के लिए एक कारण होता है तो राहेल को क्यों भूल गया हमको पता है, लेकिन फिर से प्रभु सही करके मनश्शे को दे दिया था, है ना। तो यूसुफ को प्रभु ने दिया है, यूसुफ को प्रभु ने मनश्शे को दिया है, क्योंकि यूसुफ का जीवन में भी वो भूला गया था। फॉर 13 years ही वॉज इन स्लैवरी। वो ऐगुप्त मिस्र देश में एक दास का रूप में था। उस समय ऐसा सोचा होगा मैं भूल गया है बोल के। तो भूलने का कारण क्या है? ऐगुप्त मिस्र देश का राजकुमार बनने के लिए ही है सो आपका जीवन में हर एक देरी के लिए एक कारण होता है, तो चिंता मत करना, मनश्शे का अभिषेक है जरूर। कैसा? मनश्शे के अभिषेक द्वारा प्रभु वो कारण, भूल आपको देरी होने का कारण को हटा दिया है। ऐसा आपको भी आपका जीवन में जो जो देरी हो रहा है उसको हटा देगा। एफ्राइम 2 गुना फल, डबल। आप जो खो गया है उसके लिए डबल। हाँ, यूसुफ ने अपना पापा के साथ जीवन बिताने में 14 साल खो गया था, इसलिए उसको 2 जनजातियों में उसका 2 बच्चों में चले गया। ये दोनों मनश्शे और एफ्राइम याकूब की संतान के रूप में गिना गया है। सो हर एक संतान को एक जगह मिल गया, तो यूसुफ को 2 मिल गया, दुगुना, राइट। और 12 बेन्यामीन, दाहिनी हाथ का बेटा, राइट हैंड सन, राइट। सो ऐसा ये सब अर्थ है वैसा। अभी इसमें से आपको मैं एक दिखाऊंगा आपको, राइट। उसके बाद मैं इसको समाप्त करूंगा। अभी मैंने ये 12 चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, राइट। इंग्लिश जोसेफ और बेंजामिन इंग्लिश स्लाइड, वो भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। अभी मैं क्या करूंगा, कुछ अर्धों को मैं
मिला दूंगा, आपको एक सुंदर कदन मिल जाएगा। वाह, वो आपको दिखाऊंगा मैं अभी। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, मैं वो लिखा है, देखो, कुछ अर्थों को संयोजन से हमको एक सुंदर कथन मिलेगा। राइट, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसा हम बहुत सारा देख सकता है, आप अध्ययन करो, आप देख सकता है। देखो, रूबेन का अर्थ क्या है? देखे एक बेटा, है ना, वो अर्थ देखा है हमने। सी ए सन। शिमौन, जो सुनता है, सुनेगा ना, जो सुनता है। लेवी, जुड़ा हुआ। यहूदा, प्रभु का स्तुति करो। दान, उसने न्याय किया। नफ्तली, नेक्स्ट, नफ्तली मेरा संघर्ष। गाद, सौभाग्य। आशेर, खुशी। इसाकार, इनाम। जबुलून, सम्मान। यूसुफ, मेरे परिवार में जोड़े। बिन्यामीन, धार्मिकता का पुत्र। ये सब अर्थ अभी देखा ना, इसको मैं लाइन में देखेगा तो एक अच्छा अर्थ आ जाएगा। सी दैट, स्लाइड में देखिए। राइट, सो मतलब ये नामों को हम एक क्रम रूप में साथ लिखेगा तो देखो क्या आ गया। स्लाइड दिखाओ। देखे एक पुत्र जो सुनता है, जुड़ गया, है ना। मैं ब्रैकेट में मैंने कुछ, क्योंकि ना शब्द को कुछ ग्रामर जोड़ना है, तब असली मीनिंग आ जाएगा। देखो, देखे रूबेन, है ना, रूबेन मतलब देखे एक पुत्र। कौन एक पुत्र? यीशु हमारे लिए पैदा हुआ है, जो हमें सुनता है और जो हमसे जुड़ गया है। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उन्होंने हमारे संघर्ष का न्याय किया और हमें सौभाग्य, खुशी, इनाम, सम्मान लाया। उसने अपने परिवार में हमें जोड़ा और हमें धार्मिकता का पुत्र कहा। वाओ, ऑल 12 नेम्स इन सीक्वेंस। इंग्लिश में देखिए। See, a son, Jesus, is born to us, and the one who hears us and who became attached to us. Praise the Lord, for he judged our struggle and brought us good fortune, happiness, reward, honor. He added us to his family and called us the sons of righteousness. 12 नाम, 12 नाम का सीक्वेंस, एक के बाद एक ऐसा उसका अर्थ जोड़ लिया तो कितना अच्छा आ गया है। तो देखो प्रभु ने क्या किया है। अब्राहम के द्वारा इसहाक, इसहाक के द्वारा याकूब, याकूब के द्वारा 12 संतानों। सो याकूब के वंश में से, यहूदा से प्रभु यीशु आ गया है, और वो प्रभु यीशु हमको क्या किया है? छुटकारा दिया है। सो ब्यूटीफुल। ऐसा कई अर्थ हम देख सकता है, ये जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए बताया, लेकिन आज देखो प्रभु हमको क्या क्या दिखाया है। बाकी मैं आपको अगले हफ्ता बताऊंगा। आई विल टेल यू नेक्स्ट वीक, वॉल्यूम 2 में मैं आपको बताऊंगा। राइट, आज हम इस विषय के लिए प्रार्थना करना, प्रभु जो लीवा ने गलती किया है वो मैं नहीं करना। लीवा क्या गलती किया? अपना बहन को देकर वो भी अपना दासी को दे दिया। राहेल का गलती मैं ना करना है, मतलब हाँ, सही रूप में व्यवहार करना, गुस्सा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, जलन नहीं होना, मूर्ति पूजा नहीं करना, है ना, ये चीज। सो राहेल जैसे मैं नहीं करना है। और मुझे ये 12 नाम का अभिषेक, इज़राइल का अभिषेक मुझे दे दो प्रभु, ताकि मैं आशीर्वाद में जाने। ऐसा बोल के हम प्रार्थना करेंगे। पहले सैक्रेमेंट ले लेंगे।
We'll take sacrament. प्रभु यीशु, आपका शरीर और खून आपने हमारे लिए बहाया है प्रभु। आप हमें इनाम देने के लिए, आप हमें खुशी देने के लिए, आप हमें सम्मान लाने के लिए आप आया है प्रभु। आप हमारा संघर्ष में हमको सहायता करने के लिए आप आया है प्रभु। आप हमको आपकी परिवार में जोड़कर, परमेश्वर का परिवार में जोड़कर धार्मिकता का पुत्र बनाया है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देता प्रभु। अभी मुझे इज़राइल, हम सबको इज़राइल का 12 पुत्रों का अभिषेक हमें दे दो। द 12 नेम्स अनॉइंटिंग। सब लोग जो सुन रहा है अभी, लॉर्ड, कौन कौन मेरा ये बात सुन रहा है, अभी मेरे साथ मिलके प्रार्थना कर रहा है, सबको ये अभिषेक दे दो। लिवा जैसा, राहेल जैसा हम गलत नहीं करना है, और लिवा जैसा आपसे सब कुछ लेना है। और राहेल भी अंतिम में पश्चाताप किया है, और वो भी अपना पुत्र ले लिया है आपका हाथ से। लॉर्ड, ऐसा किधर किधर हमारा जीवन में सही करना, वो सही करके लॉर्ड हम एक बड़ा आशीर्वाद का स्तर में जाने के लिए आपके खून द्वारा हम सबको सहायता करो। यीशु का नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। सैक्रेमेंट अभी हम ये एक आराधना गाना सुनेंगे। उस समय आप आराधना में आप बैठो, ये सब विषय जो मैंने बताया है उसको स्मरण करो। अभी सुनेंगे। तू ही आदि में वचन था, वचन स्वयं परमेश्वर, रचन में तेरी गुप्त महिमा अप्रकट है मसीह में। कितना सुंदर वो नाम, कितना सुंदर वो नाम, यीशु मसीह का मेरा राजकुमार। कितना सुंदर वो नाम, कोई नहीं उसके समान। कितना सुंदर वो नाम, यीशु मसीह का। कितना सुंदर वो नाम, यीशु मसीह का। तू नहीं चाहता हमारे विनाश, इसीलिए स्वर्ग को लाया यहाँ। पापों से महान तेरा प्यार, अब क्या कोई हमें अलग कर सके। तू नहीं चाहता हमारे विनाश, इसीलिए स्वर्ग को लाया यहाँ। पापों से महान तेरा प्यार, अब क्या कोई हमें
के समान, कितना अद्भुत वो नाम यीशु मसीह का, कितना अद्भुत वो नाम यीशु मसीह का। तू ही आदि में वचन था, वचन स्वयं परमेश्वर, वचन में तेरी गुप्त महिमा अप्रकट है मसीह में। कितना सुंदर वो नाम, कितना सुंदर वो नाम यीशु मसीह का, मेरा राजकुमार। कितना सुंदर वो नाम, कोई नहीं उसके समान। कितना सुंदर वो नाम यीशु मसीह का, कितना सुंदर वो नाम यीशु मसीह का। तू नहीं चाहता हमारे विनाश, इसीलिए स्वर्ग को लाया यहाँ। पापों से महान तेरा प्यार, अब क्या कोई हमें अलग कर सके। कितना अद्भुत वो नाम, कितना अद्भुत वो नाम यीशु मसीह का, मेरा राजकुमार। कितना अद्भुत वो नाम, कोई नहीं उसके समान। कितना अद्भुत वो नाम यीशु मसीह का। मृत्यु से जीता अब ना कोई पर्दा, पाप और कब्र को हराया। स्वर्ग में आनंद, तेरी स्तुति और महिमा, क्योंकि तू जी उठा है फिर से। विरोधी ना कोई, तेरा समक्ष ना कोई, अब और हमेशा तेरा राज है। तेरे ही राज, तेरी ही महिमा, तेरी ही नाम सबसे ऊंचा है। मृत्यु से जीता अपना कोई पर्दा, पाप और कब्र को हराया। स्वर्ग में आनंद, तेरी स्तुति और महिमा, क्योंकि तू जीता है फिर से। विरोधी ना कोई, तेरे समक्ष ना कोई, अब और हमेशा तेरा राज है। तेरी ही राज, तेरी ही महिमा, तेरी ही नाम सबसे ऊंचा है। कितना प्रबल वो नाम, कितना प्रबल वो नाम यीशु मसीह का, मेरा राजकुमार। कितना प्रबल वो नाम, कोई नहीं उसके समान। कितना प्रबल वो नाम यीशु मसीह का, कितना प्रबल वो नाम यीशु मसीह का।
प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आज आपने हमको याकूब का 12 संतान के बारे में बताया है, उसका नाम का अर्थ हमको बताया है। लॉर्ड, हम सबको, हमारा कलीसिया को, हर एक कलीसिया को, हर एक विश्वासी को प्रभु रूबेन का अभिषेक दे दो लॉर्ड, शिमौन का अभिषेक दे दो, लेवी का अभिषेक दे दो, यहूदा का अभिषेक दे दो, दान का अभिषेक दे दो, नप्ताली का अभिषेक दे दो, गाद का अभिषेक दे दो, आशेर का अभिषेक दे दो, इस्साकार का अभिषेक दे दो, जबलून का अभिषेक दे दो, यूसुफ का अभिषेक दे दो, मनश्शे और एफ्राइम का अभिषेक दे दो, बिन्यामीन का अभिषेक दे दो लॉर्ड। ये अभिषेक से आप इज़राइल का देश को आशीर्वाद किया है, वही आशीर्वाद से हमारा देश को भी आशीर्वाद दे दो, हमारा लोगों को भी आप आशीर्वाद दे दो, हमारा सब परिवारों को आप यही आशीर्वाद दे दो प्रभु लॉर्ड। दया करो आपके हाथ में से लॉर्ड, हम सब कुछ लेने के लिए लॉर्ड हमको तैयारी करो। और अब देने वाला परमेश्वर है, अब क्षमा करने वाला परमेश्वर है, अब दया दिखाने वाला परमेश्वर, किसी को नहीं छोड़ेगा। कोई भी आपके पास आ गया तो किसी को मना नहीं करेगा प्रभु लॉर्ड। हमारा लोगों को सहायता करो, हमारा परिवारों को सहायता करो, हमारा चर्चेस को, हमारा पास्टर्स को सहायता करो प्रभु लॉर्ड। और हमारा भारत देश के सभी लोगों के लिए भी सहायता करो, क्योंकि प्रभु आप न्यायवान परमेश्वर है। आप धर्मी को ऊपर और अधर्मी के ऊपर आपका सूरज देता है प्रभु। ऐसा हमारा सब लोगों के ऊपर आपके अनुग्रह की दृष्टि दे दो प्रभु। और आशीर्वाद पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, आपको हमारा जीवन में दिखाने के लिए हम सबको सहायता दो। यीशु का नाम में हम प्रार्थना, आमीन। और ये नामों के विषय में बहुत सारा बात है, वो मैं आपको वॉल्यूम 2 में अगले हफ्ता में बताऊंगा, ठीक है। फिर अगला हफ्ता मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। आप क्या करना, अभी ये जो स्क्रीनशॉट लिया है वो आपके पास रख के, वो पढ़ के वो 12 नाम का अभिषेक के लिए आप इज़राइल का अभिषेक है, राइट। गॉड ब्लेस यू।